السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے کیونکہ حکومت نے ایک بار پھر پیشکش کی ہے پی ٹی آئی کو مذاکرات کے حوالے سے۔ ایاز صادق صاحب نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ پھر رابطہ منقطع نہیں ہوا، آج بھی ہم رابطے میں ہیں، اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب گئے ہیں مولانا صاحب کے گھر، اور ظاہر ہے اس سے پہلے الائنس بننے کی جو خبریں آئی تھیں، جانا لگتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اپنی گو نہ گو مصروفیات سے وقت نکال کر وہاں جائیں گے۔ اچھا، یہ تو تمام معاملات ظاہر ہے اب نیشنل ایشوز ہم بات کریں گے ہی، لیکن کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو معاشی ہب ہے، سب سے زیادہ ریونیو یہاں سے جاتا ہے پورے پاکستان کو، اور اس پر ضرور ہم بات کریں گے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو کے نہیں دے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، چوتھی مسلسل حکومت ہے، جبکہ میئر بھی اس بار تو نہیں کا ہے کیونکہ ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے جی بآسانی منتخب ہو گئے وہ، اور لیکن اس کے باوجود بھی شکایات بہت ہیں لوگوں کو بھی، اور جہاں ایم کیو ایم پاکستان کے ظاہر نمائندگان کو بھی یہی ہے کہ جی آپ کی حکومت ہے، آپ سندھ میں موجود ہیں، آپ کراچی میں بھی آپ کا میئر ہے، حیدرآباد میں آپ کا میئر ہے، جبکہ ایم کیو ایم جس طرح وفاقی حکومت کا حصہ ہے تو ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن وفاقی حکومت کا ذمہ داریاں کم ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ ذمہ داریاں ظاہر صوبائی حکومت کی ہوتی ہیں۔ اس پر ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے آغاز کریں گے پروگرام کا۔ بہت شکریہ ریحان صاحب، کیا کہیں گے؟ ایک تو ذرا نیشنل ایشوز یہ کہ پاکستان کو اس وقت کتنی ضرورت ہے سر مذاکرات کی، بڑی سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں تاکہ سیاسی استحکام آ سکے، یہ سمجھتے ہیں سر آپ بھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے بہتر یہی مذاکرات نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خاص طور پر جو صورتحال جو حالیہ دنوں میں چل رہی ہے، سیاسی صورتحال، اس کے لحاظ سے تو بہت ہی واضح موقف ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام اسٹیک ہولڈرز کا، تمام ریکگنائزڈ پولیٹیکل انٹیٹیز کا، کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اقوام عالم میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور بیرون سرمایہ کاری کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی صورت لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اب لوگوں کا ٹرسٹ اسی بنیاد پر ہوگا بین الاقوامی طور پر بھی، بین الاقوامی اداروں کا بھی، جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول پی ٹی آئی، جو کہ اگر ریکگنائزڈ ہے اور پاکستان میں عدم برداشت کی سیاست کا تدارک بھی چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل نظام بھی چاہ رہے ہوں، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کم از کم گفت و شنید کا دروازہ کھول کے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، سیاست ہے کیا؟ یہ ڈائیلاگ کا ہی نام ہے، نیگوسیشن کا نام ہے، یہ آربیٹریشن اور فلیکسیبلٹی اور ٹالرنس کا نام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز حالانکہ ایوولوشنری فیز میں ہیں، ہماری سیاست بھی، سیاسی پارٹیز بھی، لیکن پھر بھی اس کو لرن کرنا بہت ضروری ہے، اور جلد از جلد لرن کرنا بہت ضروری ہے۔ جلد از جلد لرن کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب بھی موجود ہیں، کس تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بزنس کمیونٹی میں بڑا نام ہے۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ خاص طور پر یہ جو مذاکرات کا آج پھر دوبارہ دعوت دی ہے ایاز صادق صاحب نے کہ بھی پاکستان میں سیاسی استحکام آنا چاہیے، ہم لے کر چلنا چاہتے ہیں سب کو ساتھ، لیکن پی ٹی آئی آج بھی بدستور اسی بات پر موجود ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا تو بات آگے نہیں بڑھے گی؟ لیکن پی ٹی آئی کے پاس جتنے آپشنز تھے وہ تو سب ختم ہو گئے۔ انہوں نے دھرنے کی، احتجاج کی، پروٹیسٹ کی، سول نافرمانی کی، ہر طرح کی جو ایگریسو ہوسٹائل کو کال کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اس میں کسی میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اور 26 نومبر کا آپ کو پتا ہے جس طرح سے یہ واپس بھاگے ہیں سب چیزیں چھوڑ کے، بس ویری امبیرسنگ۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایک بہت اچھا موقع ملا تھا ڈائلاگ کا، اور جو مذاکراتی ٹیم بنائی گئی تھی اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، دونوں سائڈ کے میچور لوگ کے بات آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے جو بھی ذرائع اس کے مطابق میں بتا رہا ہوں، 28 تاریخ کو ہم نے انہیں جواب دینا تھا، اور ہم جوڈیشل کمیشن کے اوپر ہم جواب دے رہے تھے کہ اس کا متبادل ہم کیا آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ڈیٹ جو 31 تاریخ تھی اس تک کا انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے کال آف کر دی۔ ہم نے اب بھی وہ کمیٹی کو توڑا نہیں، ہم اب بھی چاہتے ہیں اور آفر دی ہے کہ یہ دوبارہ آئے اور وہیں سے چیز شروع کریں جہاں چھوڑی تھی۔
मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही सिर्फ इसका हल है। और मुज़ाकरात नाम है, जैसे रेहान भाई ने कहा, गिव एंड टेक का, एक दूसरे को अकोमोडेट करने का, कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे इश्यूज को समझने का और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने का। मुज़ाकरात ईगो नहीं होते, मुज़ाकरात में रिजिडनेस नहीं होता, मुज़ाकरात में आप ये नहीं देखते कि हमारी कितनी बात मानी जा रही है और अपनी कितनी बात मनवा रहे हैं। हमने ये देखना होता है कि जो डेडलॉक है वो आगे तो बढ़ रहा है अगर, और एक एतमाद की फिजा बढ़ रही है, बिल्कुल। तो ये खुशाइन उम्मीद है। लेकिन डॉक्टर साहब इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि खुशाइंद है, मुज़ाकरात के जरिए ही हल निकला करते हैं तमाम मसाइल के। अच्छा, ये वफाकी हुकूमत की हम बात कर रहे हैं तो ये वहाँ तक ठीक है सिलसिला, या एमक्यूएम को भी बहुत ज़्यादा शिकायत है कराची के हवाले से कि उनको भी एतमाद मिले, साथ बैठे आपकी पार्टी और कराची और सूबे के लिए बेहतरी के लिए काम किए जाए, लेकिन एमक्यूएम को साथ नहीं रख रहे आप लोग? नहीं, बिल्कुल एमक्यूएम हमारी मेन हुकूमत में इत्तेहादी जमात है, हर बड़े फैसलों में हम बैठते हैं और एमक्यूएम को एक्सेस हासिल है। वजीर आजम का जब भी एमक्यूएम की क़यादत ने वजीर आजम से मिलने को कहा है वो मिले हैं। यहाँ पे भी सिंध में बिलावल साहब ने पूरे दरवाजे खोले हुए हैं, हिदायत है कि इन्हें साथ लेके चलना है। और अली शाह साहब से मैं तो समझता हूँ इनकी बड़ी एक्सेसिबिलिटी भी है और बेहतर इंटरेक्शन है, तो एमक्यूएम वो बड़ी कदर से देखते हैं, इत्तेहादी जमात है हमारी, और हमारा एक नेशनल अलायंस भी बनता है सिंध में और कराची की सियासत में एमक्यूएम के साथ, तो एमक्यूएम को बिल्कुल हमें साथ लेके चलना है। और अच्छा, आप साथ लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर रेहान हाशमी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो बड़ा लंबा चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मतलब मुसलसल तनकीद इल्ज़ामात, चौथी हुकूमत है, 30,000 अरब का हिसाब दें, पूरी चार्जशीट पेश कर दी आप लोगों ने, तो वाइट पेपर की भी कहा वाइट पेपर लाएंगे इनके खिलाफ। लेकिन ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं तो बड़े खुशाइंद है कि साथ लेकर वो चलना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। देखें, मिर्जा साहब का अपना एक पॉलिटिकल एक्सपोजर भी है, कराची आइड भी है। इनकी आमद से और पीपल्स पार्टी की जानिब से सियासी मंजरनामे पे इनके आने से हम जैसे बहुत सारे लोग इस बात पर पुरुमीद भी हैं कि कराची का मुकदमा जो कि हम इल्ज़ामात की सूरत में या मुतालबात की सूरत में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को वक्तन फवक्तन पेश करते रहे हैं, शायद उसकी एडवोकेसी मिर्जा साहब जैसे शख्सियात जो हैं, जो कदावर शख्सियात भी हैं और दर्द भी रखते हैं, शायद बेहतर तरीके से प्रोपेगेट कर सकें। देखें, पीपल्स पार्टी एक अलहदा जमात है, हमारी अपनी एक अलहदा सोच है, नजरियाती इख्तलाफात थे और रहेंगे भी ना, हमारे आर्गूमेंट्स भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अबे तबे की सूरत हाल को हम तो अवॉइड ही करते हैं और ना इनकी जानिब से इस तरह का कोई सूरत हाल अमूमी तौर पर इमर्ज होकर आती है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हमारे पीटीआई के दोस्तों ने जो नेगोशिएशन या डायलॉग के जो सिलसिला कायम रहना चाहिए उसको जो तहकीक किया है, ऐसा सिलसिले की बात करें ना कि ये बिल्कुल डेडलॉक नहीं होनी चाहिए। नहीं, डेडलॉक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर जब ये जुमले आपके क़यादत की तरफ से आते हैं ना कि जी सिंध की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है और इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, और देख लीजिए कराची की सड़कें और कराची के हालात देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, कोटा सिस्टम देख लीजिए, जाहिर है फिर लोगों के सेंटिमेंट्स से या तो खेल रहे हैं आप या वाकई इनमें सदाकत है, तो फिर वो बयान कीजिए। उसका आर्गुमेंट देते हैं ना हम, सरवर साहब, हमारा ये मुतालबा और हमारे इल्जामात, आप इख्तलाफात करें हमसे, लेकिन हम जब ये इल्जामात दे रहे होते हैं तो उसके आर्गुमेंट भी पेश कर रहे होते हैं, उसके जस्टिफिकेशन और उसके लॉजिकल रीजंस भी बता रहे होते हैं, चलते हैं शायद बेहतर तरीके से प्रोपेगेट कर सकें। देखें, पीपल्स पार्टी एक अलहदा जमात है, हमारी अपनी एक अलहदा सोच है, नजरियाती इख्तलाफात थे और रहेंगे भी ना, हमारे आर्गुमेंट्स भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अबे तबे की सूरत हाल को हम तो अवॉइड ही करते हैं और ना इनकी जानिब से इस तरह का कोई सूरत हाल अमूमी तौर पर इमर्ज होकर आती है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हमारे पीटीआई के दोस्तों ने जो नेगोशिएशन या डायलॉग के जो सिलसिला कायम रहना चाहिए उसको जो तहकीक किया है, ऐसा सिलसिले की बात करें ना कि ये बिल्कुल डेडलॉक नहीं होनी चाहिए। नहीं, डेडलॉक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सर जब ये जुमले आपके क़यादत की तरफ से आते हैं ना कि जी
سندھ کی تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے اور انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اور دیکھ لیجئے کراچی کی سڑکیں اور کراچی کے حالات دیکھ لیجئے, بے روزگاری دیکھ لیجئے, کوٹا سسٹم دیکھ لیجئے. ظاہر ہے پھر لوگوں کے سینٹیمنٹ سے یا تو کھیل رہے ہیں آپ, یا واقعی ان میں صداقت ہے تو پھر وہ بیان کی جائے. دیکھیں اس کا آرگومنٹ دیتے ہیں نا ہم سرور صاحب, ہمارا یہ مطالبہ اور ہمارے الزامات, آپ اختلافات کریں ہم سے, لیکن ہم جب یہ الزامات دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے آرگومنٹ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں, اس کے جسٹیفیکیشن اور اس کے لاجیکل ریزنز بھی بتا رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کوٹا سسٹم کا معاملہ ہو, چاہے وہ ایم ڈی کیٹ یا دیگر ایگزامینیشنز میں اربن ایریاز کے نوجوانوں کو ایک سوچی سمجھی, جو لگتا ظاہری طور پر ایسا ہے اتنے بڑے پیمانے پہ فیل کر دینا ہو, یا ان کی پرسنٹیج اپ ٹو دی مارک نہ آنا ہو, یا کراچی کی یا اربن ایریاز کے اندر ڈپیوٹ افسران کی شرح اگر آپ دیکھیں اس میں کتنے کراچی آئٹ ہیں, اس کا الزام ہو, چاہے وہ پروونشل فائنانس کمیشن کو ڈیوالو نہ کرنا ہو تقریباً 8-10 سال سے. یہ آپ ہمارے مطالبات, الزامات, ہم سمجھتے ہیں کہ ان تمام بنیادوں کی وجہ سے ود دا پیسج آف ٹائم جو عمومی طور پر تباہی نظر آ رہی ہے, کیونکہ اگر آپ ہم موازنہ کریں گے نا دیگر صوبوں سے, آپ سندھ کے پیسے یعنی کہ کراچی جو جنریٹ کر رہا ہے پیسہ, اس پیسے سے تمام دیگر صوبے اپنی ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں, اور ہمارا صوبہ بالعموم اور بالخصوص اربن ایریاز اگر وہ ترقی کی منازل طے نہیں کر رہے, ڈیولپمنٹس کے اوپر جو ریپڈ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی, تو ہم صوبے کی حکومت اور چیف ایگزیکٹو سے مطالبہ کریں گے, ان پہ ان کو ہی تنقید کا نشانہ بنائیں گے نا, یا ہم وفاق کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. وفاق کا بھی ظاہر حصہ تو ہوتا ہے, وفاق نے بھی کراچی کے ساتھ کوئی بہتر سلوک تو نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, یہ جو ریحان حبشی صاحب بات کر رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اگر آپ درست کر دیں تو ہی ایم کیو ایم ظاہر آپ کے ساتھ خوش دلی سے بیٹھے گی, کیونکہ وہ آج بھی بات کر رہے ہیں 40 سال پرانا مطالبہ کوٹا سسٹم کا, وہ آج نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں, ایم ڈی کیٹ جس طرح تعلیم کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں, میئر بھی آپ کا ہے, حکومت بھی آپ کی ہے, وفاق بھی ماشاءاللہ آپ موجود ہیں, تو سر تدارک تو ہونا چاہیے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ریحان بھائی کراچی کا مقدمہ بہت سنسیریٹی سے اور بہت ہی مؤثر طریقے سے لڑ رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. اب اس چیزوں کو جو باتیں کی جا رہی ہیں ہم نے تھوڑا سا سیگریگیٹ کرنا ہے. کچھ ایشوز ہیں جو پرانے ایشوز ہیں جو چلتے چلے آ رہے ہیں, جس میں کوٹا سسٹم دارا جی ہے, اور کچھ ایشوز ابھی نئے کہے گئے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں ان کو اور وہ ایڈریس ہونے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں سب چیزیں تو ایک ساتھ اوور نائٹ نہیں ہل سکیں, ہمیں ترجیحات میں ان کو لا کے اور جو موجودہ چیزیں ہیں نئی جس پہ کنسرنڈ ہے ان کی, وہ ڈسکشنز میں لائیں, اس کا حل انشاءاللہ بالکل ملے گا, کیونکہ کراچی اور سندھ کا استحکام پورے پاکستان کا استحکام ہے, کراچی پورے پاکستان کا بیرومیٹر ہے. تو اگر مرکز میں انہیں ایک اچھی معاشی تبدیلی کی فضا دیکھنی ہے, اسے کراچی کو اون کرنا پڑے گا, ارریسپیکٹو کہ ان کا کہاں پہ ووٹ بینک ہے. کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے. اس شہر کے ساتھ بدنصیبی ایک یہی رہی ہے کہ اس کو اونرشپ نہیں دی گئی, اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں, ریحان صاحب بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے اس شہر کو اون بھی کرنا ہے. سر بہترین بات کی آپ نے, یہ الزامات کی بجائے یہ بات درست ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں, کسی ایک پہ ڈال دینا. ریحان حبشی صاحب اس سے تو اتفاق کرتے ہیں آپ بھی, ورنہ سارا ملبہ جس طرح پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی پہ ڈال دیا آپ نے, اپنی طرف بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی سب کا ہی ذمہ داری تھی, سبھی بہتر انداز سے کام نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے آج اتنے پہاڑ جیسے مسائل ہو گئے. حکومتیں ملی ہیں, کتنا عرصہ ملا ہے, اور اس میں ڈلیوری شہر کے لیے ان کا بھی ناظم تھا میئر, ان کی بھی کوalition حکومتیں تھیں, وزارتیں بھی تھیں, مرکز میں بھی تھیں, صوبوں میں بھی تھیں. اب میں تنقید پہ نہیں جا رہا, میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوتاہیاں کچھ ہوئی ہیں جو شہر کو ہم اس کا وہ منصب نہیں دلا سکے, بلکہ ہم اس شہر کو کچھ غلط پالیسیوں سے بہت پیچھے دھکیل دیے, اور وہ کراچی کا قرض ہے ہمارے آپ کے کندھوں پہ.
वो उतारना होगा। वो उतारना होगा और जाहिर है सब मिलकर, बहुत सी बात की आपने डॉक्टर साहब। अजहर जावेद साहब भी मारूफ सहाफ़ी हैं, यूके से हमें ज्वाइन कर लिया है, वो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। रेहान हाशमी साहब, इस वक्त जाहिर है कराची का मुकदमा आपकी जमात की, क्योंकि सिंध तक आपको ज़्यादा सीटें मिलती हैं यहाँ से और यहीं की आप ज़्यादातर बात भी करते हैं, यहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात की। लेकिन अब अगर मैं फिर नेशनल पॉलिटिकल के हवाले से आपसे बात करना चाहूँ कि जी शहबाज शरीफ साहब फिर पहुँचे हैं मौलाना साहब के घर, और वजह उसकी बयान ये की जा रही है कि जी अलायंस चूँकि बनने वाला है अपोजिशन का, तो ख़तरा उनको शायद पैदा हो गया है कि जी अलायंस बन गया पीटीआई के साथ मौलाना साहब का, तो हुकूमत के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ये लगता है आपको भी? देखिए, कबल इसके कि मैं इस आपके सवाल का जवाब दूं, मैं सिर्फ एक चीज गोश गुजार करना चाहूंगा मिर्जा साहब की बात पर। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी सूरत। मिसाल के तौर पर तो उसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि आप जिस चैनल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपसे अगर सवाल किया जाएगा तो आपके यहाँ पर जो सर्विसेज का मियाद है उस दरमियान, उस ड्यूरेशन में आपसे सवाल किया जाना चाहिए, और उसके दरमियान आपकी दी गई सर्विसेज को एनालाइज भी किया जा सकता है आने वाले दिनों से। तो एमक्यूएम भी इसी तरह जिम्मेदार है, और मैं उसके हवाले से सिर्फ इंडिकेट भी करना चाहूंगा, जब नाजमीन थे तो हमने डिलीवर किया, जिसकी मिसाल दी जाती रही। उसके बाद 15 साल का एक अरसा जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम तवक्का ये कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी की एक मुतलकुल अन्नान हुकूमत शायद बेहतर करके आ जाए। और सर 15 साल, रेहान हाशमी साहब 15 साल नहीं, बीच में वसीम अख्तर को क्यों भूल जाते हैं सर? उसको शामिल करें, ठीक है, कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, उसको भी तस्लीम करें, आप ही का सीनियर रहनुमा है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, आपके पास उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं तो उसके लॉजिकल रीजंस भी दे रहा हूँ ना। क्या वसीम अख्तर के पास या मेयर के पास हायरिंग एंड फायरिंग का इख्तियार था? क्या मुशर्रफ साहब के दौर का लोकल बॉडी सिस्टम था? क्या 2013 का कानून जिसको हम ब्लैक लॉ कहते हैं वो मुसल्लत नहीं था? क्या ऐसे कानून के तहत चीजें डिलीवर की जा सकती थी? और अगर ऐसा था तो आज तमाम महकमे, इदारे, वसाइल, क्लिक का प्रोग्राम अरबों रुपए के साथ 4.5 साल से बल्दियाती निजाम खत्म हो चुका है, तो आज डिलीवर कर देना चाहिए था। आज हमें इररिलेवेंट कर देना चाहिए था। पीपल्स पार्टी आज का मेयर इसका मतलब है ये कह रहे हैं मुस्तफा वहाब जो है डिलीवर नहीं कर पा रहा। ऐसे कानून में वो कोशिश कर रहा होगा, नौजवान आदमी है, कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसे कवानीन की मौजूदगी में मैं तो ये आर्गूमेंट दे रहा हूं ना कि 4.5 साल के करीब हो चुका है उस बल्दियाती लंगड़े लूले निजाम को खत्म हुए हुए। और अगर ज्यादातर जो टाउन्स हैं वो जमात इस्लामी के पास है और मेयर पीपल्स पार्टी के पास है, और वसाइल किसी हद तक बढ़ भी गए हैं, तो अगर ये हमारा आर्गूमेंट, ये हमारा एलिगेशन अगर इररिलेवेंट था तो हमें इररिलेवेंट कर देते परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर। ऐसा नहीं हो सका। नेशनल पॉलिसीज के हवाले से अगर जो बात करते हैं ना आप, मैंने आपसे जैसे कि गोश गुजार किया कि देखें, जब तक के नेगोशिएशन, डायलॉग, टॉलरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का आंसर सामने नहीं आएगा, और ये नाम ही है सियासत आपका नेगोशिएशन करने का, तो अगर ये सूरत हाल नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। हत्ता के पीटीआई से भी जो फेडरल लेवल पर जो नेगोशिएशन और डायलॉग की बात की जाती रही, उसकी बुनियाद ये थी कि आप कोऑर्डिनेशन करें ताकि मुल्क में इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम की तरफ आप लाएं हो तो अच्छी बात है। अजहर जावेद साहब क्या कहेंगे? ये मियां साहब, बड़ी मियां साहब की अगर मैं बात पूछूं आपसे, आपके पास अगर खबर हो, तो मियां साहब की पुरस्कार खामोशी, क्योंकि सबसे सीनियर आदमी हैं, 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, और ऐसे मौके पर जब सियासी महाजराई नज़र आ रही है, जहाँ सियासी इस्तेहकाम हमें नज़र नहीं आ रहा, मुल्क में बड़ी कोशिशें हो रही हैं, तो मियां साहब को बीच में आना चाहिए और वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन उनकी खामोशी है। सर आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं ख्याल कि वो खामोश हैं, और सियासी अदम इस्तेहकाम मेरा ख्याल है आपको शायद थोड़ी सी गलत फहमी हो रही है। अच्छा, कोई जो पिछला मेरा ख्याल है जब से पीडीएम की हुकूमत आई और अब जब से 1 साल हुआ है, तो बड़ा एक मिसाली साल गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह मिल के इस मुल्क को जो मुआशी अदम इस्तेहकाम से 2-4 किया गया था, एक वक्त में जब ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, तो आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब ने मिल के, और मियां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी क़यादत में, ये सब जमातों ने मिल के और इस मुल्क को ना सिर्फ उस मुआशी अदम इस्तेहकाम से निकाला, और इस वक्त आप इंटरनेशनल तमाम इदारों की रिपोर्ट्स देखें, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन टेक ऑफ की पोजीशन में है,
पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को अगर देखें वो बुलंदियों को छू रही है, और अभी एक आलमी इदारे की चंद दिन पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें भी मुआशी इस्तेहकाम की बात की गई है। देखिए, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो सिर्फ बयानों की हद तक है, अच्छा। वो सिर्फ की हद तक है। और मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ही समझदार सियासतदान है। उन्होंने हमेशा जब भी वक्त पड़ी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ वो खड़े हुए हैं। उनका एक बहुत अच्छा ताल्लुक है जनाब सदर आसिफ अली जरदारी के साथ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो पाकिस्तान को किसी भी ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार करेंगे। मौजूदा सियासी सेटअप जो है, और अभी देखें इंटरनेशनली भी देख लें, लोकली भी देख लें। इंटरनेशनली इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़े वक्त के साथ चाइना गए, और चाइना में जिस तरह उनका इस्तकबाल हुआ है, जिस तरह चाइना के जो ओहदेदार हैं उनको जो उधर वेलकम मिला है, प्रोटोकॉल मिला है, और चीनी वजीर आजम और इवन तमाम जो उनकी काबीना है जिस तरह उनके साथ खड़े हुए हैं, तो मेरा ख्याल है एक दोबारा रिवाइवल होने जा रहा है सीपैक का भी और चीन के साथ ताल्लुकात का। दूसरी तरफ अभी हम वीडियोस देख रहे हैं, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं, और वो जिस जगह वो खिताब कर रहे हैं वहां पे बड़े बड़े लीडर्स की ख्वाहिश होती है कि वो उस गैदरिंग से उन लोगों से खिताब करें। इधर आप वजीर जो इसहाक डार साहब है वो भी चाइना गए हुए थे, तो एक दो सूबों के वज़रा आला चाइना गए हुए थे, और मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे। तो तमाम एक पेज पे हम इस तमाम एक पेज पे भी हैं, काबिल लोग हैं। सिर्फ खान के अलावा पाकिस्तान में आप कह रहे हैं सभी काबिल हैं। अच्छा, स्टॉक मार्केट में मंदी का सिलसिला शिद्दत अख्तियार कर गया, 1634 पॉइंट्स की कमी। शरह सूद में कमी, सरमायाकारों ने $149 मिलियन निकाल लिए। FBR 360 अरब इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो सका, नई लग्जरी गाड़ियां खरीद रही। सारी चीजें भी इस वतन के हवाले से हम बयान कर रहे हैं। कर्जा कितना चला गया है, किस तरह उतरेगा, ये हमें नहीं पता। मिर्जा साहब क्या कहेंगे? रावी चैन ही चैन लिखता है जैसा अजहर जावेद साहब ने फरमाया, और मुल्क जाना टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका। ये मुझे बड़ी खुशी है कि अजहर जावेद साहब ने वो तमाम चीजें उजागर की हैं जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त दोनों रहनुमा मुल्क के लिए कर रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि खुले दिल के साथ ऐसी चीजों का एतराफ करना चाहिए। बिलावल साहब USA में, अमेरिका में मुल्क के लिए और जो इशू चल रहे हैं अभी IMF वगैरह के, दूसरे GSP प्लस, उसके लिए एक मैराथन मीटिंग्स, सीरीज ऑफ मीटिंग्स उनकी हो रही है इंशाअल्लाह। जैसे पहले उन्होंने किया था वैसे ही वो कामयाब लौटेंगे। और चीन के साथ बड़ा डेंट किया था, चीनी प्रोजेक्ट बड़े डिले हुए थे, चीनी पेमेंट्स वक्त पे नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से CPEC को एक सेटबैक लगा था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि दोबारा हाईएस्ट लेवल पे दो ममालिक के सदूर ने CPEC का वो कॉन्फिडेंस दोबारा रिगेन किया है, जो इस मंसूबे को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। और ये हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, कोई किसी की हुकूमत, कोई शख्स इंडिविजुअली अपने लिए नहीं कर रहा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मौलाना का एक जुमला मैं कह के बात खत्म करूंगा कि मौलाना समझदार ज़रीक सियासतदान है, और उन्होंने 26वीं तरमीम में हमारा साथ दिया था, इस हुकूमत का साथ दिया था, और अब भी वो उन इश्यूज के ऊपर जो तरमीम से लाए गए हैं वो उनके साथ खड़े हैं। हमें उस सेंस में कोई सर एक तरफ मौलाना को आप लोग समझते हैं कि वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। मौलाना तो रोजाना, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने कहा नए इलेक्शन कराए जाएं, ये पार्लियामेंट जो है इसको जाहिर जिस तरह की पार्लियामेंट है वो खुद कह रहे हैं कि जी नए इलेक्शन करा दें और जो हकदार है उसको जनाब सौंप दिया जाए, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। हाफिज हमदुल्ला ने भी कहा 8 फरवरी इलेक्शन नहीं ऑप्शन था। मौलाना साहब नए इंतखाबात की बात क्यों कर रहे हैं अगर हुकूमत से खुश हैं और इतना अच्छा चल रहा है इस वक्त सब कुछ? देखिए सरवर नकवी साहब, मौलाना साहब को प्रेशर बिल्डअप करने का आप सबसे खूबसूरत तरीके से आप वो प्रेशर बिल्डअप करके अपनी बात मनवाना एक माहिर जादूगर है उसके, और उसमें आप इन चीज में ना जाए कि वो पीठ मोड़ के खड़े थे या सामने खड़े थे, झुके खड़े थे। मौलाना साहब की कुछ इशूज वो समझते हैं अगर बाकी रह गए हैं तो ये मौके हैं इसमें वो उसको यकीनन एक प्रेशर बिल्डअप करके कोशिश करेंगे कराएं, और अगर वो ऐसी चीजें हैं जो उनसे इत्तेफाक किया था
शहबाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने, तो फिर वो उनको ऑनर भी करना होगा, और अगर नहीं करेंगे तो मौलाना साहब के पास प्रेशर बिल्डअप करने का गोर जो अच्छा, है ये बहुत ये अच्छी ये तरह सर बड़ी खबर दी आपने कि मौलाना साहब से जो वादे किए गए पूरे नहीं हुए, इसलिए बार बार वो कह रहे हैं नए इंतखाबात ही कराएंगे, आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे। यानी हुकूमत के पास अब ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें भी सामने रखनी पड़ती हैं कि जी कोई नाराज़ ना हो जाए, लेकिन मौलाना साहब नाराज़ हो भी जाएं तो रेहान हाशमी साहब क्या कहेंगे? तो मौलाना साहब हुकूमत में तो है नहीं, उनके होने ना होने से हुकूमत देखिए, कैसे जाएगी? मैं मिर्जा साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि ही इज अ स्मार्ट प्लेयर, वो पॉलिटिकल विजडम है उनके पास, और माजी में भी आपने देखा कि मुख्तलिफ औकात में वो आज़ादी अक्सरियत इतनी ना होने के बावजूद भी वो एक अच्छी एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट रखने के महारत रखते हैं। सर आप माशाल्लाह वो 7 सीटों में क्या कुछ कर लेते हैं, ले लेते हैं, और 22 सीटें में आप रख के भी एक ही वजारत से एक दफा किया हुआ है। ये तो देखिए, सियासत तो नाम इसी चीज का है ना कि आप कितनी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कितनी बार्गेनिंग करने की अहलियत रखते हो, और ये तो बार्गेनिंग और नेगोशिएशन के ऊपर जिसे ही बात शुरू की थी आप लोग मतलब अच्छी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं आप? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं शायद। हाँ, ये भी हो सकता है, हमारा डोमिसाइल का भी इशू हो सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर बाहर पाकिस्तानी सियासी लीडर है। हमारे इंटरनल इश्यूज जो भी हों, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे संजीदा की नौयत के मसाइल और एलिगेशंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए ऑनर की बात है। और अभी हालिया दिनों में जो कुछ आप देख रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक एडवांटेज होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान अपने मुकदमे को, जो कि बैन अल-अक़वामी तौर पर, चाहे वो हमारे इमीडिएट नेबर के साथ के हों या सीपैक में स्मूथ जो कंप्लीशन है उसके मामलात हों, चाहे वो हमारी अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग हो, चाहे वो IMF के कर्जे के मामलात हों, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इसके काफी दूररस नताइज मुरत्तब होंगे, और ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल भी होगा इंशाल्लाह। बेनिफिशियल भी होगा। अच्छा जावेद साहब, आपने एक बीच में बात रह गई मियाँ साहब के हवाले से, आपने कहा जी मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, कि वो खामोश नहीं है बल्कि वो मुतहरिक नहीं नजर आ रहे सियासत में। जिस तरह मिलना जुलना होता है, इस पार्टी की आदत से मिलना हो, मौलाना फजल रहमान साहब की आदत से मिलना हो, MQM से मिलना हो, तो वो जाहिर है इस तरह मुतहरिक नहीं है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब या दीगर पार्टी के लोग हैं उनके। मेरा ख्याल है शायद आप पिछले 3-4 दिनों से लाहौर की खबरें आप तक नहीं पहुंच रही, कराची में। सर वो लाहौर के लीडर ही बना के रखेंगे उसको, या पूरे पाकिस्तान का लीडर कब बनेगा नवाज शरीफ? सुन तो लेना, अभी मेरी भी बात सुने। अभी जो इस वक्त जो वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ साहब है, और वो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं। वो कोई भी कदम नवाज शरीफ साहब की सलाह मशवरे के बगैर नहीं उठाते। उनकी जो बेटी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो पूरे पंजाब की वजीर आला है, और वो कोई भी कदम उनकी मर्जी के बगैर नहीं उठाती, तमाम सलाह मशवरे के साथ होती हैं। वो हेड ऑफ पार्टी हैं, PMLN के सदर हैं। और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त हुकूमत के कारोबार है, हुकूमत के जो अमूर है, वो इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ के जिम्मे है। इस वक्त कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लोगों से मिले, कोई ऐसे कोई ये हंगामी सूरत हाल नहीं है तो अचानक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना कीमती टाइम में से फौरन टाइम निकाला और मौलाना साहब के पास पहुंचे हैं घर पर। मेरी बात पूरी सुन लेना भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क में आपके चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है। आपके मुल्क के अंदर तकरीबन 8 से ज़्यादा ममालिक की टीमें आ रही हैं। वो लोग इस वक्त आपके कराची हो या लाहौर हो या पिंडी हो, इस वक्त एक गहमा गहमी है, एक तरफ बाहर आ रही है, दूसरी तरफ मुल्क में आप सुने, मेरी बात सुन लेना। इस वक्त एक आपका मुल्क आलमी सतह पे आपका मुल्क उजागर हो रहा है, जहाँ पे सूरत हाल मुल्क में बेहतर हो रही है। इंटरनेशनली भी अगर देखें, अपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, इसहाक डार साहब हों, ये सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पिछले 4 दिन से मुसलसल लाहौर में अपनी पार्टी के अरकान असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन के लोगों से मुलाकात की है। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे उनका फोकस अपनी पार्टी की
जो तंजीम साजी है, पार्टी के लोगों से मिलना है, वो उस पे उनका फोकस है और वो मुकम्मल मुतहरक है। अगर आप लाहौर की खबरें देखें, इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत हैं, वो एक दूरअंदेश लीडर है और उस जिस तरह उन्होंने मिल के नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के साहब के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हो सकता है उनके दरमियान बात होती हो सकता है उनके दरमियान राब्ता हो, लेकिन आप लोग हर चीज मीडिया को दिखाने के लिए नहीं होती ना इस वक्त। और मिलकर पाकिस्तान को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों, छोटी मोटी हल्की फुल्की फायरिंग तो चलती रहती है, बयानात चलते भी रहने चाहिए। अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा सिंध में तो वो सिंध को अपना हिस्सा छीन के भी लेना पड़ता है। जब तक वो तो कहते हैं जब तक बच्चा रोए ना तो माँ दूध भी नहीं देती, तो वो उनके मसाइल है पार्टी के और वो होने चाहिए इसमें। लेकिन एक बात पे सब लीडर मुत्तफिक हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इसके मौलाना फजल रहमान हो, एमक्यूएम हो। एमक्यूएम की क़यादत ने भी बड़ी समझदारी का और बड़ी अक्लमंदी के साथ पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मौजूदा जो मईशत की बहाली के लिए उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। तो तमाम जमातें सिवाय एक शख्स के, उसकी भी क्या डिमांड है कि मुझे रिहा किया जाए, मुझे एनआरओ दिया जाए। आज आप इसको रिहा कर दें, एनआरओ दे दें, वो तमाम चीजें जो हैं वो आपको वो भी इन्हीं के साथ मिलके चल रहा होगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान, मैंने जैसे इस वक्त कहा, टेक ऑफ की पोजीशन में। आप अपने जो यहाँ पर पाकिस्तान की माशी तरक्की के हवाले से, या एक तरफ जहाँ आपकी क्रिकेट एक बड़ा इवेंट जो है ना किसी भी मुल्क में, वो उसके लिए बड़ा अहम होता है। आप चैंपियंस ट्रॉफी की अहमियत को शायद अंदाजा नहीं हो पा रहा। अंदाजा है सर, अंदाजा बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान में है। अल्लाह करे खैर खैर। इंग्लैंड सुने ना, इंग्लैंड की टीम अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो इंग्लैंड के लोग इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं, वो पॉजिटिविटी को देख रहे हैं। अगर कराची में मैच होगा तो कराची में आपको यहाँ से जैम हो जाएगी यहाँ तो सर। लेकिन चले, अच्छी बात है आपने कहा, कराची वालों का सर डिमांड जो है ना क्रिकेट मैच नहीं है, यहाँ की टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ का गंद कचरा है, यहाँ पर और दीगर मसाइल हैं। उस तरफ देख रहे हैं कराची का, तो अदर जावेद भाई आप आइएगा कभी, देखिए जरा हाल क्या है। ये भी देखें, दूसरी तरफ ये भी देखें, कराची वाले के शहरियों ने मुतालबा किया था पिछली मरतबा कि भाई यहाँ मैच ना कराएं, खुदा के लिए ट्रैफिक जाम कराची का बहुत बड़ा मसला बन चुका। एक मिनट बात सुने, दूसरी तरफ पॉजिटिव रुख भी देखें ना। कराची वो शहर है जिसने पूरे मुल्क के अंदर से लोगों को अपने अंदर समोया हुआ है। इस वक्त लाखों नहीं करोड़ों लोग वहां से रोजगार हासिल कर रहे हैं। अगर कोई हजारा से या केपी से बंदा उठता है, वो दुबई जाने के बजाय कराची में आके वो कमा रहा है। और ये आज से नहीं है, आप सिर्फ नेगेटिव रुख क्यों देखते हैं? हाँ, कुताहियां हैं, मसाइल हैं, हर मुल्क में होते हैं। अब यार लंदन में आ जाए, लंदन की सड़कें भी बहुत जगहों पे टूटी हुई हैं, लोग यहाँ पे सड़कों पे भी सोते हैं, लोगों के लिए यहाँ पे मसाइल भी हैं, खाने के भी हैं, रिस्क के भी दूसरे भी हैं, जॉब्स के भी हैं, लेकिन नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कराची की पॉजिटिविटी देखे। मैं अच्छा भाई वापस आता हूँ आपकी तरफ। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था कि ये बड़ी खबर थी बड़े अखबार की, डॉक्टर साहब से मैं पूछ लूं, शरह सूद में कमी, सरमायाकारों ने $149 मिलियन निकाल लिए। सर क्या कहेंगे, स्टॉक मार्केट में भी 1634 पॉइंट की कमी हुई है और सरमायाकार पैसा वहां से निकाल भी रहे हैं क्योंकि शरह सूद में कमी भी है। सर किस तरफ जा रही है मार्केट और क्या हो रहा है सर ये? डॉक्टर साहब, मार्केट में शरह सूद जब 23% डिस्काउंट रेट था तो लैंडिंग रेट बैंकों के जिस पर कर्ज मिलते थे वो 24-25% हो गए थे और उसमें सब बैंकों ने अरबों रुपए प्रॉफिट कमाया, लेकिन उसमें सनत बारे में नहीं आ रही थी। यानी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी सनत 25% मार्कअप देके नहीं चला सकते, बारे में आई थी नहीं। हमारे अपने तजर्बे सनतें हैं 25-24% में आपने डिफॉल्ट करना ही करना है। तो अल्लाह का शुक्र है अफरात ज़र को कम किया, अफरात ज़र के साथ साथ डिस्काउंट रेट भी 23% से 12% पे लाए और अब इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे जा रहे हैं। तो दो फायदे हुए, एक तो बिजनेसमैनों को, सनतकारों को यह है कि अब उनकी माली लागत कम हो गई और वो 12% पे कायब और 11 पे भी मिल रहा है, 10-11% पे वो आगे आधी होगी उनकी माली लागत। दूसरा फायदा हुकूमत को हुआ है कि वो जो ट्रेजरी बिल में बैंकों से कर्जे उठाते थे 23% पे, 24% पे, 20-21% पे, अब इस बार उन्होंने रिजेक्ट किया है कि 11% से या 10% से ऊपर जो था कि हम नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेजरी बिल के रेट्स कम हुए। लिहाजा हुकूमत को जो मार्कअप की मद में देना पड़ रहा था वो भी आधा हो गया, 1000 अरब रुपए से ज्यादा बचत हुई है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। बिजनेस कम्युनिटी की भी यही डिमांड थी। अभी मैंने
550 बिजनेसमैन जो टॉप के पाकिस्तान के और कराची के बिलखुसूस रैन भाई बिजनेसमैन थे, उनको बिलावल साहब से मीटिंग कराई थी और इसमें कोई सियासी एजेंडा नहीं था, इसमें एजेंडा सर था वो उसमें तो कि एमकेएम ने उनके कहा था, मसाइल- धमकी दी है बिलावल ने ताजिरों को। नहीं ऐसी देखिए आप मंफी चीजें गिलास सर आधा इसका खाली मतलब बोलते मैं हैं। नहीं, ये तो फिर इसका मतलब नहीं, एमकेएम वाले मनफी चीजें करें, ध्यान रखिए साहब, फिर मैंने ये और बातें आप नहीं लोग करें किया और था, फिर नासिर बाद में मतलब हम हुसैन सवाल शाह कर के लें तो फिर ये देखिए मिलके ये होता है फिर। और कोई ऐसी बात नहीं हुई है। हाँ ये जरूर हुई है कि कमेटी बनाई गई है जिसमें मैं भी हूँ, उसकी मीटिंगें भी हो गई हैं, उसके इश्यूज भी एड्रेस हो गए हैं और लेकिन जो डॉक्टर हम साहब ताजिर करा खुश रहे हैं नहीं है, इंशाअल्लाह। ताजिर बिरादरी पीस पार्टी से खुश नहीं है, जब भी तो फिर बिलावल को कहना पड़ा कि भाई वहां जाके शिकायतें चुगली ना करें, मुझे बता दें जो काम है। बिलावल साहब ने ये कहा था कि आपको मुझसे या मेरी जमात से अगर कोई शिकायत है तो मुझसे जरूर कहें, हम हल करेंगे। मैं पीपल्स बिजनेस फोरम का सदर हूँ, जो एक ब्रिज है, पुल है पीपल्स पार्टी का और बिजनेस कम्युनिटी का। अभी भी मैं पार्लियामेंट में इश्यूज अमेंडमेंट में आ रही हैं, टैक्स लॉज में, उस पर लड़ रहे हैं। हसन बख्शी साहब, आरिफ हबीब साहब रोज आए हुए होते हैं और मैं उनकी वहां मदद कर रहा हूँ। तो और हमारी जिम्मेदारी है, उन लोगों ने हम इसी काम के लिए वहां भेजा है। तो बिलावल साहब से बड़ा एतमाद हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी खुश होके गई है। जिन्होंने शिकायतें थी वो शिकायतें की, जो इश्यूज थे वो इशू बताए और जो फिर वो उसके ऊपर सोल्यूशन चाहते थे वो भी बतलाए। तो ये एक बहुत अरसे के बाद इंटरैक्टिव मीटिंग हुई है, फेस टू फेस, और उन्होंने कहा हर 3 महीने के बाद इंशाल्लाह। ये बहुत सी बात है सर, बहुत सी बात है। ताजिर बिरादरी अगर खुश है, रहना की साहब आप लोग खामखा ऐसी बातें करते हैं, धमकी दे दी और ये कर दिया, ताजिर बिरादरी इतनी खुश है तो फिर आप लोगों को क्यों इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखें हमने जो महसूस किया और जो हमारे पास फीडबैक आया वो हमने अया कर दिया, और जो मीडिया ने भी दिखाया उस बात की तशहीर भी की और उस बात पर मुतालबात भी की हमने। जहां तक कराची के बिलखसूस ताजिर बिरादरी का ताल्लुक है, चाहे वो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हों चाहे बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हों, डे टू डे उनको जो जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ताजिरों ने जो शिकायत की, और ये बहुत मेरा ख्याल अच्छी बात है पीपल्स बिजनेस फोरम के सरबराह के तौर पर अगर मिर्जा साहब इस बात को टेकअप करते हैं कि कराची में बिलखसूस होने वाला नारावा सलूक यहाँ के ताजिरों के साथ, वो डिपार्टमेंटल जो अथॉरिटीज हैं यहाँ मुख्तलिफ जो स्केल के बिजनेस करने वाले लोगों के साथ जिसको कहते हैं वसूलियां करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उनकी जमीनों पे टैक्सेस आयद करना हो, बेजा टैक्सेस, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल के इशूज हो, चाहे वो स्कीम 33 और इससे एडजेसेंट एरियाज के अंदर मुख्तलिफ लोगों की जमीनों पे कब्जे का मामला हो, जो कि जिन्होंने सरमायाकारी की हुई है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उसमें ज्यादातर शामिल हैं, चाहे वो सोसाइटीज को यरगमाल बना लेना हो, ये इस तरह के बहुत सारे 1 दर्जन 2 दर्जन नहीं सैकड़ों की तादाद में जो इश्यूज हैं वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और उसी के हवाले से लोग नाला हैं। देखें लोग उसी वक्त सरमायाकारी करेंगे, बैंकों में क्यों रखा लोगों ने, क्योंकि शरह सूद अच्छा था। अब जब हुकूमती पॉलिसी के लिहाज से लोग वहां से पैसा निकाल रहे हैं और कहीं और सरमायाकारी करेंगे इस उम्मीद पर कि वहां पर उनके सरमाया से प्रॉफिट जनरेट होगा, तो ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कंपोनेंट है वो आपको तो ईज की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो सूटेबल नहीं है। अगर आप 4 से 5 ऐसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी उठाएं तो उसमें चाहे वो यूटिलिटी सर्विसेज की दस्तयाबी का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न्स हो, तो ये वो अहम कंपोनेंट्स हैं, और टैक्सेस उसके भी इसके में साथ आ जाता है। तो ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जिसको आपको मौसर तरीके से कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से आपकी सरमायाकारी भी बढ़ेगी, लोकल जो आपके सरमायाकार है वो भी फ्लेक्सिबल महसूस करेंगे अपने आप को, और बैरूनी सरमायाकारी भी मुमकिन तौर पर तेज की जा सकती है। अब मैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम की ज़ाहिर टाइम का किल्लत है, इंशाल्लाह फिर कभी जहमत देंगे आपको दोनों का, तीनों मेरे मौजूद मेहमान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन साहब आज का प्रोग्राम हमें दीजिए इजाज़त,